I hope I've written this down. No, just give me a second. Since the recording started a bit late, I just want to record the previous parts, whatever we have done. So those who are watching the recording, we have covered a few things. The main thing is the essential and non-essential amino acid. ठीक है. So when we talk about essential amino acid, इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखिए that this is essential in diet because our body cannot synthesize it. Body can't synthesize it. ना body इसको बना नहीं पाती है. That is why these essential amino acids are needed in diet, and these non-essential are not needed because body can synthesize it. Body can synthesize it. Then there are 10 amino acids which are essential, and there are 10 amino acids which are non-essential. You can write these slides from the lecture PPT that I sent. Okay. This is just for those who are watching the recording. Okay. Now back to what we were doing. Achha, one more thing is the formation of zwitter ion, which is in this slide. What happens? The nitrogen, it lone pair attacks on the hydrogen. It abstracts the hydrogen and get NH3 positive. And the zwitter ion, it has COO negative. Also, amino acids are amphoteric in nature because when we react amino acid with acid, the NH2 group takes part into the reaction. When we react it with base, the carboxylic acid takes part into the reaction. Now, moving on, please see this. A substance forms zwitter ion. It can have which functional group? Which functional group should be present if it forms zwitter ion? Okay, only one answer, guys. Quickly, chali, 10 more seconds. 10, 9, 8, 6. Quickly answer kare, guys. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. See here. यहाँ पे actually, see, I understand Rajita and Iram when you answer NH2 and COH because that's what we have studied just now. But if you look, what is SO3H? क्या नाम होता है इस functional group का? Can you remember? Do you remember SO3H? What's the name of this functional group? यहाँ किसी को याद है SO3H को क्या बोलते हैं? 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा when सल्फोनिक एसिड, राइट? सल्फोनिक एसिड. ठीक है. अब देखिए ये तो आपका NH2 तो क्या है? बेसिक बेस का काम करेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह से एसिड का काम कर रहा है उसी तरह से सल्फोनिक एसिड इज आल्सो गोइंग टू वर्क एज द एसिडिक पार्ट. एंड यहाँ पे NH2 इज टेकिंग द हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे NH2 लेगा हाइड्रोजन ऑफ SO3H. एंड दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम कैन फॉर्म zwitter ion. अब अगर आप लोग ने अमीन्स के रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने देखा होगा एक सल्फानेलिक एसिड करके होता है. Here we have NH2 group and here you have SO3H. है ना? Iram and Rajita, especially you guys, I think you Iram ने देखा है recordings. Iram, have you seen this compound? ये zwitter ion के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. Yes, sir. एक रिएक्शन बता रहे हैं. हाँ, एक रिएक्शन है जी. It is basically the electrophilic substitution reaction जहाँ पे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन कर रहे हैं हम लोग एंड आफ्टर सल्फोनेशन वी गेट अ zwitter ion टाइप ऑफ थिंग. यहाँ पे SO3 नेगेटिव मिलता है. ठीक है. So जब हम लोग amines करेंगे then we will again see that NH2 and SO3H है. तो both this option is correct that both of them NH2 or COH या फिर NH2 or SO3H they are going to form zwitter ion. So option C is correct. ठीक है. That's what written here. Now try this one. The alpha amino acid exists as internal salt in solution as they have amino and carboxylic acid groups in near vicinity. इंटरनल एसिड का मतलब क्या हुआ? इंटरनल एसिड का मतलब देखिए एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ना. एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं.
इफ यू सी द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, उसमें भी क्या हो रहा है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है बट इंटरनली हो जा रहा है, तो ये तो असर्शन तो ट्रू है, ठीक है. इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सीइंग दैट इट इज प्रेजेंट एज ड्यूटेरायन. The nitrogen lone pair is going to abstract the carboxylic acid's hydrogen. And so alpha amino acid exists as internal salt in solution as they have amino and carboxylic acid near vicinity. So this statement is true. Tell me about this statement, the reason, whether it is true or false in the chat. Jaldi, 10 seconds again. 10, 9. You don't need to write this down, है ना? आप लोग सिर्फ पढ़िए इसको. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Answer, guys. 2, 1, and 0. Actually, Rajit, I was just asking whether this reason statement is true or not. So yeah, this reason statement is also true, no? Because H plus ion given by the carboxylic acid is captured by the amino group, or and amino group having lone pair electrons. And I think assertion because reason, this is also true. क्योंकि alpha amino acid internal salt तभी होते हैं because what happens, the carboxylic acid hydrogen is captured by the NH2 group. ठीक है, so the A option is correct. That both of these are correct, and reason is the correct explanation of assertion also. ठीक है, moving on. Try this one. This is regarding starch that we have already done. यहाँ बोल रहा है इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट. बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक. ठीक है, सी है. स्टार्च के बारे में आप लोग क्या कुछ याद नहीं किसी को? क्लियर गाइस. स्टार्च जो आपको अगर थोड़ा सा याद हो, देन स्टार्च में आपके पास दो तरह के लिंकेजेस होती हैं. ये किसी को याद है या फिर ये भी याद नहीं है? जी. स्टार्च में सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च ना. एक तो अमाइलोपेक्टिन और एक क्या होता है, अमाइलोज होता है. नाउ इन अमाइलोज व्हाट डू वी हैव, आपके पास C1C4 होता है. ओनली वन टाइप ऑफ लिंकेज, C1C4 लिंकेजेस, राइट. अमाइलोपेक्टिन में लेकिन अगर आप देखें ना, दिस इज फॉर अमाइलोज. अमाइलोपेक्टिन में आप देखें तो दो तरह की होती है. C1C4 भी होता है, और फिर क्या होता है, C1C6 भी होता है. तो C1C4 वाला जो लिंकेज है, ठीक है, सो देर आर मेनी चेन्स विद C1C4 ऐसे. C1C4 के लिंकेजेस इस तरह से हैं, C1C4 के लिंकेजेस. सो यू कैन सी दैट इट इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट, टू पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज. ये एक पॉलीसैकेराइड हो गया ग्लूकोज का, ये दूसरा पॉलीसैकेराइड हो गया ग्लूकोज का, है ना. और इन दोनों के बीच में लिंकेज होगा. फिर ये एक पॉलीसैकेराइड हो गया, ये एक पॉलीसैकेराइड हो गया, इन दोनों के बीच में लिंकेज होगा. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज. It involves a C1C4 glycosidic linkage between alpha D glucose unit. That is also true. It involves branching by C1C6. ये भी सही है. ब्रांच कैसे होता है C1C6 से?
but it is a pure single compound. This is not true. It is not a single compound, rather it is what? It is a polymer. स्टार्च अपने आप में एक कंपाउंड नहीं है, इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड नहीं, दैट मींस सिंगल कंपाउंड अगर होता तो उसको ब्रेक करते तो आपको एटम्स मिलता, but on breaking the starch we don't get atoms, rather we get what? Different compounds, glucose की unit मिलते हैं हमको. That is why I can say that it is not a pure single compound, rather it is a mixture or rather a polymer of different alpha D glucose unit. ठीक है, so the A option is the right answer and incorrect statement. The first option, बाकी सारे सही हैं. दिस इज C1C4 यहाँ पे लिंकेज है, ठीक है, C1C4. ये एक क्या यूनिट हो गया? पॉलीसैकेराइड यूनिट, और ये एक पॉलीसैकेराइड यूनिट हो गया C1C4 वाला, और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है दैट इज बाय C1C6. ओके, नाउ मूविंग ऑन. ये तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बस ये आंसर है. व्हाट अबाउट दिस वन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, आपको बस बताना कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ये सीरम करेक्ट, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? अरे यार ये तो, खैर चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए क्लास में. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड द क्लास विद. 10 more seconds. 10, 9, 8, 6, 5. Okay, fine. Getting the correct answer mostly. Yeah. All amino acid except glycine are optically active, है ना? Chiral A chiral वाला सवाल था. ठीक है, so C option is the correct option. Now, try this one. Which among the following is incorrect statement? चलिए, ये तो खैर हमको नहीं लगता याद होगा आप लोगों को, बट फिर भी चलिए, आई एम गिविंग यू गाइस 10 सेकंड, तुक्का ही मार लीजिए कम से कम. ऑप्शंस को रीड करके तुक्का मार लीजिए कम से कम. 10 सेकंड. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. हाँ, अरे चलिए, कुछ तो याद चाहिए आप लोगों को, है ना? यहाँ तो देखिए आपके पास दो चांसेस थे, है ना? एक तो सी सेल्यूलोज एंड अमाइलोज, राइट? अमाइलोज के बारे में आपको पता है, इट हैज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लैक्टोज कंटेन्स बीटा डी लैक्टोज यूनिट. तो लैक्टोज में ये भी आपको पता है कि ग्लैक्टोज तो आता है और ग्लूकोज आता है. माल्टोज एंड लैक्टोज में ये हैव 1,4 लिंकेज. एक चीज जो बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए, दैट अमाइलोज में क्या होता है, अमाइलोज हैज ओनली C1C4 लिंकेज, और यहाँ पे C1C2 लिखा हुआ है. तो दैट इज व्हाट, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द डी ऑप्शन. चलिए, नेक्स्ट. अल्फा अमीनो एसिड्स. नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, है ना? देखिए, जब कोई
जब कोई कंपाउंड एसिडिक भी होता है किसी वजह से और बेसिक भी होता है ना, तो उसको ना ही एसिडिक बोला जाता ना ही बेसिक बोला जाता, उसके लिए अलग नाम है ना, एम्फोटेरिक बोला जाता है उसको। ठीक है, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक। सो अल्फा अमीनो एसिड के बारे में अगर बात आएगी तो दिस स्टेटमेंट ना, जो पहला स्टेटमेंट है इसके लिए क्या वर्ड है, इट इज एम्फोटेरिक। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रादर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इज करेक्ट, बिकॉज वो क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इवन दो इट, आपको अगर ऐसे बोला जाए ना कि इट विल, अरे हमने तो कहा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस वुड रिएक्ट विद अ बेस, ठीक है, एंड NH2 ग्रुप विल रिएक्ट विद एन एसिड, दैट स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू। बट ये बोलना एसिडिक ड्यू टू COH एंड बेसिक ड्यू टू NH2, तो इसके दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस। इसके लिए क्या वर्ड होता है, इसके लिए वर्ड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। सो दिस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इवन तो जो मीनिंग निकल रहा है ए से सही है, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दे आर व्हाट, एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, चलिए अब अगला जो है आपका अमीनो एसिड के बाद, अमीनो एसिड के बाद इन सेंस इन दी अमीनो एसिड इटसेल्फ यू हैव पेप्टाइड्स। सर व्हाट आर पेप, हाँ हाँ, ये अब बताइए। सर फिर न्यूट्रल क्या होता न्यूट्रल क्या होता है? अगर कोई चीज न्यूट्रल है ना, तो आप इसको अगर पानी में डालिएगा, देन ना ही ये H+ के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ना ही ये OH- के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो दीज आर न्यूट्रल। जैसे पानी न्यूट्रल होता है, मेक सेंस सर? पानी को अगर पानी में ऐड कीजिएगा तो क्या होगा किसी चीज की, उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है दैट इज न्यूट्रल, एंड N2O दैट इज आल्सो न्यूट्रल। सो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। है? उसमें से एक एग्जाम्पल पानी का, ठीक है, दोज आर न्यूट्रल। थोड़ा सा अगर आप लोग को याद दिलाते हैं हम, आप लोगों ने एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, है ना, ऑक्साइड्स के बारे में। अच्छा हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और मेटल जो बनाते हैं ना, मेटल वो दो तरह के बताते हैं, एक होता है आपका, मेटल दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, एक तो बेसिक बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, और जो बनाते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो या तो एसिडिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जब भी एम्फोटेरिक की बात आती है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो आपका अमीनो एसिड उसमें अलग अलग ग्रुप की वजह से, इन ऑक्साइड में वो मेटल का होगा हमेशा, जिसमें से आपके पास जिंक और एल्यूमिनियम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी सवाल आते हैं। नॉन मेटल में न्यूट्रल होता है और एसिडिक होता है, ठीक है, लिखा है। व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स जो होते हैं, दीज आर अगेन अमीनो एसिड, बट उसमें अमीनो एसिड ना बहुत सारे होते हैं एंड दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सिंपली स्पीकिंग व्हाट इज पेप्टाइड? पेप्टाइड इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। सो देयर आर मेनी अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर। Now, compounds formed by the condensation of amino group of one molecule of amino acid and carboxylic group of other molecule of the same or different amino acid by elimination of water. ठीक है, so these compound peptides कैसे फॉर्म होते हैं? Peptides are formed by the condensation. By what? By condensation of amino group of one molecule, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उन दोनों के रिएक्शन से पानी निकलेगा, एज यू कैन सी ना, NH2 है आपके पास प्लस COOH है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो हियर यू विल फॉर्म NH और CO। ये जो लिंकेज होता है ना NHCO, दिस इज नोन एज द पेप्टाइड लिंकेज, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है। तो बैकबोन इसको बोलते हैं ऑफ दी पेप्टाइड लिंकेज और प्रोटीन का, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग। So amide linkage linkages joining amino acids are called peptide bond or peptide linkages. Okay. Now, see, peptide that peptides that contain 2, 3 या फिर few, जैसे 3 से 10 और many amino acid are called dipeptide, tripeptide, oligopeptide and polypeptides. ठीक है ना, दो रहा तो डाई, तीन रहा तो ट्राई, 3 से 10 तक रहे तो ऑलिगो, एंड मोर देन 10 अगर रहे, मोर देन 10 तो फिर क्या बोलेंगे? पॉली।
ठीक है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स, ऑलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स रिस्पेक्टिवली। अब डाइपेप्टाइड क्या है? डाइपेप्टाइड विल बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन और द कंडेंसेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड को कंडेंस करेंगे तो डाइपेप्टाइड मिलेगा, तीन को करेंगे तो ट्राई मिलेगा, सो ऑन। एक बार देख लेते हैं हाउ अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म। सो हियर यू कैन सी दैट आपके पास ज्वेटर आयन के फॉर्म में अमीनो एसिड है, एंड यहाँ पे भी ज्वेटर आयन के फॉर्म में दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्ट? पानी निकल जाता है, वाटर इज बीइंग रिलीज्ड, एंड देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड वही सी डबल बॉन्ड ओ और NH, ये जो पूरा बॉन्ड है ना, ये वाला, इन दोनों कंपाउंड के बीच में, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। एंड दिस इज अ डाइपेप्टाइड, यानी दो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे आप देखिएगा, द अमीनो एसिड NH2 group which is taking part in reaction and the carboxylic group which is taking part in the reaction, they are being neutralized. और फिर से डाइपेप्टाइड में भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। नो दिस इज अगेन अ ज्वेटर आयन, ओके। और खैर पॉलीपेप्टाइड में आप पढ़ेंगे, जो ये अमीनो एसिड है ना, इसका N टर्मिनल यहाँ पे है और यहाँ पे C टर्मिनल है। ठीक है, खैर बाद में पढ़िएगा आप लोग। बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म। इसको जरा आप लोग बना लीजिए, है ना, प्लीज मेक दिस स्लाइड डाइपेप्टाइड का। I hope you're done drawing. Now, why same cheese that the amino acid unit having free NH2 group is called the N-terminal end, whereas the amino acid unit having free COH group is called C-terminal end. और जो हम हमेशा लिखते हैं ना अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए A1 है बॉन्डेड टू A2, बॉन्डेड टू A3, बॉन्डेड टू A4, अगर हमने ऐसे लिखा है दैट मीन्स A1 का NH2 ग्रुप फ्री होगा और A4 का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, A1 का, अच्छा रिएक्ट कौन सा किया होगा, तो A1 का कार्बोक्सिलिक एसिड और A2 का NH2 रिएक्ट किया होगा। देन A2 का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड A3 का NH2 रिएक्ट किया होगा, एंड A3 का कार्बोक्सिलिक एसिड और A4 का NH2 रिएक्ट किया होगा, एंड दीज A1 का NH3 फ्री है और A4 का कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री है। So you always write the structure is written with N terminal end to the left and C terminal end to the right. तो आप ऐसे लिख दीजिएगा N2C, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, N टर्मिनल का पहले, उसके बाद फिर C टर्मिनल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज ट्राई पेप्टाइड, यहाँ पे तीन पेप्टाइड्स हैं, तीन अमीनो एसिड्स हैं, इट इज गोइंग टू बी ट्राई पेप्टाइड। अब दिस इज दी N टर्मिनल और ये आपका कौन सा है, दिस इज योर C टर्मिनल। नाउ see next, at N terminal और C terminal further bond formation takes place डाइपेप्टाइड के बाद, और आपको ट्राई, टेट्रा और पेंटापेप्टाइड्स इस तरह से मिलते हैं। नाउ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर, दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, एक मतलब 10 से
ज्यादा अगर हो जाए तो इट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। अब नेमिंग की अगर हम बात करें, हाउ टू नेम द पॉलीपेप्टाइड, तो इसके लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एन टर्मिनल रेसिड्यू। ओके, suffix "-ine" of amino acid is replaced by "-ine" for all except the amino acid of C terminal. For example, आपके पास अगर ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसाइल हो जाएगा। एलानीन है तो क्या हो जाएगा, एलानाइल। लाइसिन है तो क्या हो जाएगा, लाइसाइल। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको आराम से पहले पढ़ते हैं। किसके लिए करना है, आइन से वाई, आइन से वाई किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑल, सबके लिए, एक्सेप्ट जो वो अमीनो एसिड जिसका सी टर्मिनल है ना, यानी कि लास्ट वाला अमीनो एसिड, एक्सेप्ट द वन विथ सी टर्मिनल। ठीक है, बस लास्ट वाले का नहीं होगा, बाकी सबका आइन से वाई एल हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपके पास AgF का है, यानी कि एलानीन, ग्लाइसिन एंड फिनाइल एलानीन का है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले एलानीन है तो एलानीन नहीं लिखे, एलानाइल। ग्लाइसिन नहीं लिखे, ग्लिसाइल। फिनाइल एलानीन नहीं लिखे, फिनाइल एलानीन पूरा का पूरा, है ना, बिकॉज दिस इज द लास्ट वन, है ना। PHE के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, ऑल। फिनाइल इसमें INE आ जाएगा, बाकी दोनों में YL आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको जरा लिख लीजिए प्लीज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट इट डाउन। स्ट्रक्चर नाम ही बनाए तो ना, इसको लिखने का ये लिख लीजिएगा बस। I hope you have written this down. Now let's move on to proteins. Now, what are proteins? Generally, देखिए प्रोटीन्स की डेफिनेशन इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। कभी कभी जैसे इंसुलिन को भी प्रोटीन एक कहा जाता है, बट इट इज लाइक हैविंग ओनली 20 to 50 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, बट जनरली जो प्रोटीन के डेफिनेशन है, that it is generally a polypeptide with more than 100 amino acid residues। 100 अमीनो एसिड से अगर आपको मिला हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोटीन, है ना। अब जैसे एक सम पॉलीपेप्टाइड, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया, सम पॉलीपेप्टाइड विद लेसर नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर आल्सो नोन एज प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन एक एग्जांपल। ठीक है, उसमें 51 अमीनो एसिड ही होते हैं, बट स्टिल इट इज नोन एज प्रोटीन। ओके, सो इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, बट एक जनरल डेफिनेशन क्या है, 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। जब भी आप ना कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जहां पे वर्ड्स की और टर्मिनोलॉजीज डिफाइंड नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोटीन्स की टर्मिनोलॉजी डिफाइंड नहीं कि कितना होना चाहिए एग्जैक्टली, तो ये समझ लीजिए दैट दिस इज एन एमर्जिंग फील्ड। ये बहुत पुरानी साइंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन फिक्स है ना। ऑड क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन फिक्स है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट ना, जिस दैट्स वाई सारे डेफिनेशन सब कुछ उसमें जो है वो बिल्कुल आ चुका है नजदीक आपके सामने। बट क्लास ट्वेल्थ में आने के बाद, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में दैट इज वेरी लो लेवल ऑफ नॉलेज ना, कि आप स्कूल में ही है, कॉलेज होता है, उसके बाद मास्टर्स होता है, उसके बाद PhD भी होती है। ठीक है, सो टिल स्कूल में भी आपको ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसका डेफिनेशन फिक्स्ड नहीं है।
दैट मीन्स दीज बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री जो है ना, बायोकेमिस्ट्री इट इज स्टिल एमर्जिंग फील्ड, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ स्टिल न्यू फील्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लिखा है, ये एक ट्रिविया था पॉइंट। बट proteins are what? They are generally a polypeptide with more than 100 amino acid residues. Now, now proteins on partial hydrolysis gives peptide, यानी कि amino acid के linkages of varying molecular masses which on complete hydrolysis will give you alpha amino acid. ठीक है, तो ऑब्वियसली नेचुरल प्रोटीन्स, प्रोटीन किससे बने हुए? अमीनो एसिड से बने हुए, तो आप इनका जब हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो आपको पेप्टाइड मिलेगा, फिर पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, सो यू विल गेट द मोनोमेरिक यूनिट दैट इज द अल्फा अमीनो एसिड्स। नाउ इफ आई क्लासिफाई द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास हेयर होता है, राइट, बाल है आपके पास, देन यू हैव मसल। मसल में भी आपने देखा होगा, दोज हु पीपल हु ईट चिकन एंड ऑल, आपने देखा उसमें रेशा रेशा होता है, यस और नो? हैव यू सीन दैट, यस और नो गाइस? नहीं देखा किसी ने? चिकन को जब आप तोड़ते हैं तो उसमें वो रेशा रेशा निकलता है ना? नो, नहीं देखा। इरम, तारीफ, सफिया, शाहिद, फादर, डेबोरा। Yes, sir. रेशा नहीं, रेशा नहीं जानते, रेशा को क्या बोलते हैं? इरम हेल्प मी आउट हियर। रेशा आप जानते हैं? रेशा मतलब जानते हैं इरम? हाँ सर, मैं समझ गई। I don't know. सॉरी, हाँ सर, मैं जानती हूँ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे उसको? लेकिन हेयर ही बोलेंगे तो फिर आप लोग चिकन कभी खाइएगा नहीं, है ना? इफ आई कॉल कि वो चिकन हेरी हेरी सा होता है, तो वो फिर आप लोग कभी खा नहीं पाइएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट। Strands. हाँ, स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं, राइट? सो इफ यू ब्रेक इट अप देन इट feels like there are some strands of muscles, right? So those are examples of fibrous proteins. ग्लोबुलर प्रोटीन में आप ये समझ लीजिए, तो ग्लोबुलर प्रोटीन वो मेनली हॉर्मोन्स होते हैं, इंसुलिन उसमें से एक एग्जांपल है, इंसुलिन। ठीक है, now fibrous and then we have globular protein, these are based on what? molecular structure के ऊपर। अच्छा, एक और चीज अगर आप देखिएगा ना, these fibrous protein they are not water soluble, ये बिल्कुल याद रखिएगा, वाटर soluble नहीं होते हैं। now what are fibrous protein? when polypeptide chain run parallel to each other and has fiber like structure, क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रस प्रोटीन। एग्जाम्पल इज केराटिन विच इज प्रेजेंट इन द हेयर, वूल एंड सेल, और मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स। ठीक है, मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल। इन फाइब्रस प्रोटीन चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में ना आपको बताते हैं एक चीज, जो केराटिन होता है ना, केराटिन में अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा है, हाई लार्ज नंबर, ठीक है, उनके जो बाल होते हैं दे आर मोर करली। ठीक है, जहां डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं उनके बाल क्या होते हैं? करली होते हैं। अच्छा, करली बालों को ट्रीट कैसे किया जाता है बताइए? स्ट्रेट किया जाता है ना? कैसे किया जाता है स्ट्रेट? टेल मी गाइस, कैसे स्ट्रेट करते हैं? स्ट्रेटनर से? Heat. हाँ, हीट से। सो व्हेन यू हीट इट, व्हाट हैपेंस, जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। आप जब हीट करेंगे तो वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एंड व्हेन दैट अट्रैक्शन ब्रेक्स, देन आपके क्या होगा? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? इट इज नाउ स्ट्रेट। ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा? आपकी बात सीधे हो जाएंगे। फिर जैसे ही जैसे टाइम गुजरेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड फिर से बनने लगेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे विल अगेन बिकम मोर एंड मोर करली। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए व्हाट हेल्प्स? मॉइस्चर। ठीक है, सो व्हेन इट इज ड्राई वेदर, सो इट इज क्वाइट इजी टू मेंटेन अ स्ट्रेट हेयर, मतलब बाल सीधे रहते हैं। बट एज मॉइस्चर इंक्रीजेस, मतलब बारिश का टाइम होता है, फिर बारिश होने के बाद का जो मौसम होता है, उसमें बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी टाइप से हो जाते हैं, राइट? So that is again because moisture helps formation of disulfide bond. Okay. Now, यार ये सारी चीजें तो ट्रिविया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आपके पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस डेफिनेशन, what are fibrous protein? So since the classification it is on the basis of molecular structure, so we can say that polypeptide chain which run parallel to each other and held together by, साथ में इसको कर लीजिएगा, when polypeptide chain run parallel to each other and held together by hydrogen and disulfide bond,
and has a fiber like structure, those proteins are known as fibrous protein. Example आपके पास केराटिन और मायोसिन, and these are insoluble in water. ये वाटर में soluble नहीं होते. ठीक है. Now moving on, next we have globular protein. ठीक है. Now what are globular protein? A folded polypeptide chain. It forms a spheroidal shape, यानी ऐसे गोल सा शेप रहता है. ठीक है. It's called globular protein and these are soluble in water. And example इसमें है आपके पास insulin and albumins. इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन. अब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना, और या फिर आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जो भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, दे आर स्टडीड ऑन 4 डिफरेंट लेवल. एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उनका, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन यू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो वी विल लर्न इन डिटेल राइट नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन में आपको दो चीजें जो याद रखनी है, दैट इज फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड फॉर्म्स अ स्फेरोडियल शेप. स्फेरोडिया मतलब गोल जैसा है ना, जैसे ये भी आप अगर आम लैंग्वेज में गोल जानेंगे, आम लैंग्वेज में गोल क्या हम बोले आपको एग्जांपल कैसे, लाइक ऑन द सर्कुलर चीज ना, सारे सर्कुलर, मतलब अगर कोई सर्कल से थोड़ा सा मिलता जुलता भी होता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा भी होगा, तो इसको भी वी कॉल दैट इट इज सर्कल ना, गोल है. फिर उसके बाद अगर परफेक्टली गोल रहता है तो उसको भी हम लोग गोल ही बोलते हैं. तो सिमिलरली all these shapes which are kind of a sphere, they are known as what? Spheroidal shape. ठीक है. It's called globular protein. एकदम sphere नहीं रहेगा, smooth surface नहीं, but it is spheroidal shape. Okay. Now moving on, primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल कंसेप्चुअल है, जिनको आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनता किससे बताइए गाइस? व्हाट इज प्रोटीन मेड अप ऑफ? टेल मी गाइस. प्रोटीन किस चीज से बनता है? व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट? प्रोटीन में बहुत सारे होते हैं ना, क्या यूनिट होता है, किस चीज से बनता है? अरे बोलो बोलो. अमीनो एसिड. अमीनो एसिड. वेरी गुड. ठीक है. अमीनो एसिड. नाउ या करेक्ट. अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि कौन से अमीनो एसिड किससे कनेक्टेड है. समझ में आ रही? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आपको चेक करना है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक चलिए ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको देखेंगे. बट क्या याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या बताएगा? द सीक्वेंस, कौन कौन से अमीनो एसिड कैसे कैसे कनेक्टेड है, व्हाट अमीनो एसिड एंड हाउ दे आर कनेक्टेड. Each polypeptide protein has amino acid linked with each other in a specific sequence known as primary structure. Any change in this primary structure, that is a sequence of amino acid, creates a different protein. है ना? भले ही सेम प्रोटीन, सॉरी, भले ही सेम आपके पास अमीनो एसिड हो, बट अगर सीक्वेंस अलग हो जाएगा तब भी नया प्रोटीन वहां पे डेवलप हो जाएगा. इट विल गिव यू अ डिफरेंट प्रोटीन. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू सी नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है, normal hemoglobin, it has valine, histidine, leucine, threonine, proline, glutamic acid and then lysine. Now sickle cell anemia hemoglobin जो होता है ना, जो मतलब सिक सेल जो होता है एनीमिया वाला हेमोग्लोबिन, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन होता है. So as you can see, there is a change of single amino acid and this is a perfectly normal and this is a sick anemic hemoglobin cell. Okay. So ये जो है ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है. There is a change in the primary structure. As you are having change in primary structure, तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही बदल जाएगा. अच्छा. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस रिगार्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर? Sir, I have a question. हाँ जी शाबाश. So that this is the structure of DNA. नो नो नो, नॉट डीएनए. डीएनए में तो न्यूक्लिक एसिड होगा ना. Okay, sir. ठीक है. यहाँ पे अमीनो एसिड, दीस आर प्रोटीन्स. ठीक है, बेसिकली प्रोटीन से भी पढ़ रहे हैं, नॉट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो द, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास अल्फा अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 इस तरह से आए हैं, राइट. नाउ दीज अमीनो एसिड ना बहुत लॉन्ग चेन है, राइट. सो दे विल हैव सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
अब ये स्ट्रक्चर ना दो किस्म के होते हैं। एक होता है आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। दो टाइप के स्ट्रक्चर, एक होता है हेलिक्स और एक होता है शीट्स। हेलिक्स का मतलब आपके पास इस तरह से रहेगा, दिस इज हेलिक्स, और शीट आपके पास लॉन्ग चेन ऐसे करके रहेगा, ठीक है, दिस इज शीट्स। तो आपको इफ आई, खैर अभी नहीं, छोड़ दीजिए अभी, बाद में हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देंगे, मतलब एक कंप्लीट खैर आएगा आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड यू विल सी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको ये दो डेफिनेशन याद रखने, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। दैट मीन्स अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, दैट मीन्स द पेप्टाइड लिंकेजेस जो होती हैं दे कैन फॉर्म आइदर अल्फा हेलिक्स और दे कैन फॉर्म बीटा प्लीटेड शीट। तब अल्फा हेलिक्स क्या होता है, पीसी। In this structure, polypeptide chain are forms all the possible hydrogen bond by twisting into right-handed screw helix. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सीओ, इट इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन ऑफ एनएच ग्रुप यहाँ पे, दिस सीओ इज कनेक्टेड विद एनएच यहाँ पे। सो दीज टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स गिव राइज टू द हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरह से जो आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर आ रहा है। द एनएच ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड forms hydrogen bond with the carbonyl of adjacent turn of helix. दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस तरह से टर्न होके वो एसिड बनाता है। एनएच ग्रुप किसका, हर अमीनो एसिड, इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सीओ ऑफ एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स। एडजेसेंट जो बगल वाला टर्न होता है, नॉट दी एडजेसेंट अमीनो एसिड बट एडजेसेंट टर्न वाला अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ऑल द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। In the beta pleated sheet, what happens in this structure? All the peptide chain are stretched out to nearly a maximum extension, and they are laid side by side, and that are held together by intermolecular hydrogen bonding. All the polypeptide chains are linked together in parallel and anti-parallel segments. ठीक है, बीटा पीरियड शीट में आप देखिए, जैसे आपके पास ये एक शीट है, ये एक लिंकेज है, देखिए ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना आपको, these dotted lines are what, these are two different amino acid group। ये इधर एक पेप्टाइड लिंकेज है और इधर एक पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। सो दीज टू पेप्टाइड लिंकेजेस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट, दे आर हेल्ड टुगेदर, और जनरली ना ऐसे होता है दिस टाइम। तो यहां से एक चेन आया अमीनो एसिड का और फिर ये टर्न होके इधर आ गया ना, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर मेरे पास आई थिंक इट इज देयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे तो नहीं है, फिर आई विल शो यू गाइस कि हाउ द बीटा प्लीटेड शीट्स आर फॉर्म, ओके। अभी आप ये याद रखिए कि दैट it is extended and are laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding. These are held together by intermolecular hydrogen bonding. And polypeptide chain are linked together in parallel and anti-parallel sequence. एक इधर जा रहा है और दूसरा फिर उसके opposite direction में। So this is chain is going in this direction and this chain is going in this direction. Fine. अब थोड़ा सा हम आपको एक सेकंड, just give me a second.
गेट अ गुड एग्जाम्पल जिसमें आपको दिख जाए। 6GIS। Yeah, can you just see the screen? Hmm. Can you see the screen? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. No, yes, yes. ठीक है। तो this is too much. ठीक है, ये आपको, हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये एरो। कैन यू सी दिस? यस और नो? Yes, sir. है ना, ये वाला आई कैन एनोटेट ना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिस वन, राइट, एज यू कैन सी, एंड दिस वन, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। सो दीज आर द बीटा प्रीजेड शीट्स। फाइन, गॉट इट गाइस? सिमिलरली आपके पास you can see all of these single sheets जो है ना इस तरह से, all of these are what? All of these are beta pleated sheets। ये हो गया, ये हो गया, all of these are beta pleated sheets। Then if I want to see the helix, you can see the helix also यहाँ पे। These are the helix, ये दिख रहा है आपको? These are the helix, right? So you can see that this is a complete protein structure, और यहाँ पे protein structure what it is made up of? It is made up of beta sheets and then you have what? Alpha helixes। ठीक है, so अब beta sheets का आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे 4 है, there's always a parallel and anti-parallel। देखिए यहाँ पे you have 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला आपके जा रहा है इधर राइट डायरेक्शन में, और ये इट इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। पैरेलल एंटी पैरेलल इस तरह से नाम होता है। अगेन पैरेलल एंड देन इसका अपोजिट वाला एंटी पैरेलल। तो दे all exist, they will always exist in parallel and anti parallel shapes। ठीक है, बस ये चीज आपको दिखानी थी। जो बीटा पीरियड शीट्स होता है वो पैरेलल एक इस डायरेक्शन में होगा और एक उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ओके। तो बीटा प्लेट शीट एंड देन यू हैव दी बीटा प्लेट शीट, और उसके बाद आपका अल्फा हेलिक्स। ठीक है, दो। नाउ दिस इज फाउंड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट इन दिस वी हैव सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड है। देयर इज वन स्ट्रैंड ऑफ व्हाट? द अल्फा अमीनो एसिड्स, उनका लिंकेज है, और उसी के बीच में क्या होगा? यू विल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं वो होगा। बट इन द बीटा पीरियड शीट इफ यू सी, all peptide chains are stretched out to a nearly maximum and they are laid side by side that are held together by intermolecular hydrogen bond। यहाँ पे भी आपके पास you will have one single chain but these are laid side by side and held by intermolecular hydrogen bond। Next is the tertiary structure। The tertiary structure में क्या होगा आपके पास? tertiary structure में you will see that the overall folding जो है उससे क्या आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है? Either it will give rise to fibrous proteins or it will give rise to a globular structure। दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके पास टर्शरी में।
ठीक है. So it represents the overall folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure producing a 3D. That means alpha helix, ठीक है, and beta sheets दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर देंगे. ठीक है. एंड आइदर दैट स्ट्रक्चर विल बी फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फिर एक वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, इट इज विच इज इन स्फेयर टाइप ऑफ शेप. ठीक है. देखिए जरा यहाँ पे. सो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स. हाँ यहाँ पे तो है आपके पास, दे आर टॉकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना. यहाँ पे आपको किस तरह का मिल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हेलिकल स्ट्रक्चर इज देयर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, राइट. Then you have the beta pleated sheet. The beta pleated sheet is also having what? Intermolecular hydrogen bonding. एक parallel और एक anti-parallel. एक इस direction में and then one is in this direction. Okay. So these are the different types of forces that we are having. क्या क्या mainly forces होते हैं? These are hydrogen bonding, disulfide linkage, electrostatic interaction, van der Waals forces. But you don't have to learn about these. दो चीज आपको याद रखनी है, alpha helix और beta pleated sheet. अब ये दोनों मिलके ना जो भी आपको स्ट्रक्चर दें, ये फाइब्रस भी हो सकता है और एक ये ग्लोबुलर भी हो सकता है. दोनों के मिलने के बाद अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट एक ही प्रोटीन के अंदर होंगे और उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर आएगा. इट विल बी आइदर फाइब्रस और ग्लोबुलर. दिस इज द 3D. ये क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा. दैट मींस द टर्शियरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी हैव द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? जब यू हैव टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर टू एज सब यूनिट्स. ठीक है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? कुछ आपके पास प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें, जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे जो आपके पास है, ये जो आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे, कैन यू सी दैट ऑल द ऑरेंज वाला, वायलेट वाला और ग्रीन वाला सेम ही चीज है? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन, इफ यू लुक क्लोजली, कैन यू सी इट इज ऑलमोस्ट सेम, बस रंग अलग है इसमें. कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. Yes. है ना. ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट जो है ना आपका, देर ऑलमोस्ट देर लाइक सेम थिंग, बट उसका कलर अलग है. सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये दिस ब्लू पार्ट इज वन पॉलीपेप्टाइड, this red part is another polypeptide, and this green part is another polypeptide. So this is a protein which is made up of 3 polypeptide linkages. ठीक है. 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं यहाँ पे. अब इन तीनों को मिला के एक आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ओके. सम ऑफ द, my bad. Yeah. So some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain, refers to as subunit. The spatial arrangement of these subunit with respect to each other are known as quaternary structure. ठीक है. जब एक से ज्यादा सब यूनिट मिलकर जो स्ट्रक्चर देंगे वो क्वाटरनरी होगा. यानी क्वाटरनरी सब में नहीं होता है. क्वाटरनरी इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. बात करते हैं समरी की. सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन द अल्फा अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड विल आइदर मेक अ अल्फा हेलिक्स और इट विल मेक अ बीटा शीट. The alpha helix and beta sheet, they can make peptides which are either fibrous or they are globular. Now, if you have more than two, if you have 2 or more than 2 polypeptide linkages, it is going to give you a quaternary structure. ठीक है. तो दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये हमेशा नहीं होगा, बट जब तभी होगा जब आपके पास एक से ज्यादा क्या हो? पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस हो. ये चीज इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए ना, कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव more than 2 or more than 2 polypeptide linkages. Next is the denaturation of proteins. So what is denaturation of protein? Denaturation of protein occurs when you have some kind of change. Just give me a second. Yeah, when protein in native form is subjected to physical change in temperature or pH, the hydrogen bonds are disturbed. As a result, the globules unfold and helices are uncoiled. Therefore, protein loses its activity. Basically, क्या होता है?
when you heat something, so alpha helix, it is formed by the different hydrogen bonds. Similarly with the beta sheets, alpha helix or beta sheet के hydrogen bond को disturb करेंगे, then what will happen? The tertiary structure is going to change, and as the tertiary structure changes, we call that denaturation of proteins. Okay, results, globules are get unfold and helices get uncoiled. Therefore, it will result in the loss of activity of the different type of protein. कैसे होता है ये आपको याद रखने की जरूरत है, टेम्परेचर चेंज करने से और पीएच चेंज करने से. ठीक है, दिस इज द कॉज. What happens because of this? The hydrogen bonds get disturbed, and what happens when the hydrogen bond gets disturbed? Globules get unfolded and helices get uncoiled, and protein loses its activity. ठीक है, yes, when these things happen, we say that denaturation of protein. Denaturation का आप समझ लीजिए कि प्रोटीन अपने नेचुरल स्टेट से अलग हो जाता है. ठीक है, प्रोटीन अपने नेचुरल स्टेट से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है. गॉट इट? नेक्स्ट इज during the denaturation, secondary and tertiary structure get destroyed, but the primary structure remains the same. यानी कि जो सीक्वेंस है अल्फा अमीनो एसिड का ना, सीक्वेंस तो सेम रहेगा, बट हेलिसेस और बीटा शीट में चेंज आएगा, एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर विल चेंज. दो मेन एग्जांपल है वो आपके कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइल बॉइलिंग. तो जब एग विच इज नॉट बॉइल्ड, इट हैज लिक्विड yolk एंड द व्हाइट पार्ट, बट उसको जब आप बॉइल कर देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर में चेंज होता है, देन व्हाट डू वी हैव? वी गेट coagulation of egg, it gets hardened. Similarly, curdling of milk caused by the bacteria present inside the milk, and this is occurring because of pH change. जैसे जैसे वो एसिडिक होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, कर्डलिंग होती जाएगी मिल्क की, एंड मिल्क विल, विच इज लिक्विड इन फॉर्म, स्लोली इट विल गेट टर्न इनटू कर्ड, और कर्ड बनने के बाद व्हाट विल हैपन? कर्ड बनने के बाद इट विल बी सॉलिड या सेमी सॉलिड टाइप का शेप इसको मिल जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. अपनी नेचुरल स्टेट से हट जाने को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन. ठीक है, नाउ दिस इज अगेन एग्जांपल यहाँ पे दैट एग्स में कैसा डीनेचुरेशन होता है. ओके, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे. देयर आर सम क्वेश्चंस यहाँ पे ना, चलिए सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड द क्लास. ट्राई दिस वन. Disruption of natural structure of protein is called denaturation. The change in color or appearance of egg during cooking is due to denaturation. Yeah, that is correct. लेकिन एक बात, कलर कहाँ चेंज होता है?
कलर चेंज होता है कुक करने से, व्हाइट वाला पार्ट तो व्हाइट ही रहता है ना। इरम, तारीफ, नो दूसरे सर, आंसर। ट्रांसपेरेंट रहता नहीं, ट्रांसपेरेंट रहता है। अच्छा हाँ। ठीक है, then the B option is correct. Change in color अगर आप of egg during cooking is due to denaturation, then we can say yeah that is B is correct option, है ना। बट यही अगर दिस इफ दिस इज assertion एंड ये रीजन होता तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, राइट। सो assertion इज द करेक्ट रीजन, है ना। assertion सही रीजन है, मतलब assertion वाला स्टेटमेंट इज द रीजन, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड denaturation because the change in color or and appearance of egg during due to, नहीं that is not correct। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन। यहाँ पे सी लिखा हुआ है क्या? सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक। Now, the force of attraction between neighboring peptide chain is because दो पेप्टाइड चेन के बीच में है ना, तो सी दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है ना ये वाला। सो व्हेन यू हैव टू नेबरिंग पेप्टाइड चेन, इन दोनों के बीच में वैंडर वाल फोर्सेस होते हैं, नो नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग पेप्टाइड चेन, इट इज वैंडर वाल फोर्सेस। ओके, एक पेप्टाइड चेन में, यानी इफ यू हैव सिंगल पेप्टाइड चेन, इसमें अगर अल्फा हेलिक्स है तब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और अगर बीटा शीट है तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बट अगर ये दोनों सामने सामने आ जाते हैं ना, दो अलग पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस हैं, तो उनके बीच में वैंडर वाल फोर्सेस होते हैं। ओके, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो आता है दो अलग पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस से, दैट इज विथ वैंडर वाल फोर्सेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नेम द नेम ऑफ द गिवन पॉलीपेप्टाइड, जरा बताइए। आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दिस पार्ट। Can you identify what type of polymer, sorry, what type of amino acid is this? Option D is correct. This is glycine and this is alanine. This part is alanine. So it is going to be alanine and glycine. ALA-GLY. चलिए, that's it for today, and we will do the rest in the next class। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे। अब ज्यादा पोर्शन आपके पास बचा नहीं, वी हैव जस्ट न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, एंजाइम्स एंड फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दीज आर इजी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। जैसे कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स होते हैं। Then you have vitamins, after vitamins and enzymes we have the main part, that is nucleic acid। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए,